म्यूट कर दूंगी। तो मदिया फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें ताकि हम स्टार्ट करें। सो जी, ट्यूब ओवेरियन मैस। मदिया, आपके पास केस है? जी मैम। चलो ग्रेट, मैम बताएं। जी मैम, इसको ये एक पेशेंट थी, यंग ही थी, 30 इयर्स की थी। इनफर्टिलिटी का हम्म, केस था। पैरा 1+0 थी। पैरिटी ठीक 1 है। थी उसकी नहीं तो प्रीवियसली। आप केस बताओ ना, हमें सिनेरियो जी बताओ। मैम। जी मैम। हम्म। मैम, patient age 30 years came in OPD with a complaint of lower abdominal pain and she was not able to conceive uh, हम्म। since 1 year. हम्म। ठीक है। और मैम इतना सही था। मैं फर्दर अब इसको नहीं तो एवोल्यूट बोलो करूंगी। ना, 30 इयर्स ऑफ एज, नली पैरस, जी मैरिड मैम। फॉर इतने ईयर। नहीं नहीं नहीं, 30 years of the age, पैरा 1+0 हाँ तो ये थी। कौन बताएगा? सिनेरियो पूरा बताओ जल्दी से, शाबाश। 30 इयर्स, पैरा 1+0। जी मैम, OPD came in OPD with a complaint of lower abdominal pain and she wanted to conceive and she was not conceiving since a period of 1 year. ठीक है। 30 इयर्स ऑफ एज, पैरा 1+0, मैरिड जी मैम। फॉर, पैरा 1 में लास्ट कंसेप्शन कब थी? ये एटलीस्ट सिनेरियो में दिया होगा। जी मैम, मैरिड फॉर 3 years के लिए थी और जो है आप वो। सही तरह बोलो, द वे वी टॉक इन एग्जाम। वी आर नॉट ओके इन अ मैम। वार्ड, हम एग्जाम में वाला। आप बोलो शी इज 30 इयर्स ऑफ एज, पैरा 1+0, मैरिड फॉर 6 years, लास्ट चाइल्ड born इतनी years back, now unable to conceive, या now came in OPD with a complaint of wants to conceive for 1 year and pain lower abdomen for 1 year। ठीक है, ओके मैम। शाबाश, दोबारा दोबारा बोलो। बोलो सारा। जी मैम। माय पेशेंट नेम, ये पेशेंट नेम रुबीना था। शी केम विद द एज ऑफ, patient name Rubina, age of ठीक है। 30 years, हम्म। para 1+0. She came in, हम्म। she was married for गुड। 4 years. She came in OPD with a अब complaint of ठीक है, lower abdominal pain since joining 6 months, शाबाश। and she wanted to conceive also. She was unable to conceive since 1 year. ठीक है, तो अब किस तरह प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोलोगे आप? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ ना। Uh, मतलब कि पहले हाँ। पुराना, पहले जो लंबा मसला है वो पहले बोलते हैं कि पेन लोअर एब्डोमेन 1, उसका ज्यादा लंबा मसला वांट्स टू कंसीव है ना। जी मैम। ओके। कि शी इज ट्राइंग टू कंसीव या शी इज अनेबल टू कंसीव फॉर लास्ट 3 years एंड पेन लास्ट लोअर 1 year एब्डोमेन फॉर 6 months, एंड। जी मैम। या जितने भी ईयर। ठीक है, जो जी मैम। पुराना मसला है वो पहले बोलते हैं, जो कंपैरेटिवली नया मसला है वो उसके बाद बोलते हैं। ये तो बात हो गई एमबीबीएस लेवल की अब तक की। चलो अब आप बताना शुरू करो इस पेशेंट का। सो हाउ विल यू मैनेज? जी मैम। ओके मैम, स्टार्ट करूँ? जी। Uh, First of all, I will introduce myself and will take the introduction of the couple, including the name, age, educational status, the occupation of both the husband and wife. Then I would also know about the parity which has been mentioned, para 1+0, and she is married for 3 years also. Then I want to know about her last menstrual period also. Then हम्म। I want to know about the duration of her शाबाश। symptoms, which she told that she want to conceive since the period of 1 year, and she has the lower abdominal pain since 6 months. आप बोलते रहो बेटा। व्हाई डिड यू जी मैम। स्टॉप? Okay, ma'am. Then further, I would like to know about the detail of her symptoms, including the duration of her pain, the site of the pain. I would also like to know about the severity of the pain and the nature of the pain. Is it continuous or intermittent? Any radiations, any shifting or referring of the pain, and any relieving or aggravating factors. Then further, I would also like to know about any history. Is there any history of the fever or discharge? Is there any history of dyspareunia or बेटा आपका postcoital टाइम भी bleeding? Is नोट there? हो रहा है। यू जी हैव मैम। टोटल 10 minutes टू डिस्कस टिल मैनेजमेंट। सो शाबाश, स्पीड थोड़ा तेज करें। करें जी। Any history of the fever, any history of शाबाश। the discharge, any history of the dyspareunia or the postcoital bleeding. Further, I want also know about the symptoms of the increased urinary frequency, urgency, and the dysuria. I also want to know about the symptoms of the weight loss, loss of appetite, productive cough, and chest pain. I want also know about the symptoms of the increase. Is there any history of the weight gain, hysterism, or acne? Any history of sleeping disturbance, heat or cold intolerance? Any history of
disturbed bowel habits, any constipation or diarrhea, or any tremors or sweating. Then I also want to know about any history of the headache, blurring of the vision, and the milky discharge from her breast. I also want to know about her menstrual cycle. I want to know about the regularity of the cycle and the frequency of the cycle, how many number of the days she used to bleed per cycle, and how many number of the pairs she uses per day to estimate her volume level. I also want to know about any contraceptive method she is currently using for. Is there any history of the mass in the lower abdomen? I would also then I will want to know about her previous of history, that as she's para 1+0, then previous mode of the delivery, any complication which occurred during the antenatal, intrapartum, or postnatal period, and how she conceived. Did she conceive spontaneously, or she took any treatment for her conception? Then her previous baby is healthy, and is there breastfeeding has been done or not? And then I want to know about her medical history, in which I want to know about any history of such symptoms in the past, any history of TB, diabetes, thyroid disorder, fibroid, or any other medical comorbidity, any family history of the TB, or any history of the fibroid, any history of such symptoms in her family, any history of the surgery, any drug intake and drug allergy is there, Pepsimir has been taken or not, is there any history of the smoke reduction is there or not? Then I want to ask about her husband's history also. I want to know about about their age of marriage, and is this her and her husband's first marriage? Are they living together? Is there any history of the such symptoms in her husband, including the lower abdominal pain, or dysuria or discharge? Is there or any history of the TB? Any treatment taken for that? Any type of the contraception her husband uses or not? Any medical comorbidity, any surgery, any history of the smoking? Semen analysis has been done or not? If done, then the date and the report of the semen analysis. Then I want to know about their coital frequency also, and any coital dysfunction problem which has been occurring, or it has been carried out smoothly, or is there any problem? Should I go? Move to examination. Okay. In examination, I want to know about her BMI, weight and height. I need the vitals of my patient. I need the signs of the anemia. I want to examine her thyroid gland and the lymph nodes. I want to do her routine chest examination, and want to examine her breast for the presence of milky discharge. I would like to, I want to know her per-abdominal examination, in which I want to examine for the presence of any mass, any tenderness, and any viscomegaly. On local examination, I would like to know about the presence of any discharge is there or not, and about the hair distribution pattern. On perispeculum examination, I would like to know about the health of vulva and vagina, any discharge, any signs of the inflammation or edema is there or not. I want to know the position of the cervix, any mass coming out of the cervix, any discharge is present or not, any bleeding is there. Then on bimanual examination, I want to do the bimanual examination to look for the presence of any cervical motion, tenderness. I want to examine the uterus to know about the size, mobility, position, tenderness, and the consistency of the uterus, as well as the adnexia for the presence of any mass or fullness or tenderness is there or not. And obviously this will also include, I will also want to do the examination of the husband also in the presence of the urologist. Okay, good. You are not bad, Medhiya. आपने when you told us the scenario, वो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती परेशान हो गई है है, तो वो मैं तब बड़ी परेशान सी हो गई. But you were not bad. So the thing is कि right from the very beginning, जैसे मैं हमेशा पहले भी कहती हूँ, you have to be very very correct and focused. जैसे आप out, you were good, but the thing is, I don't know. देखो क्लिनिक पे अगर आप शुरू में भी कुछ बोंगी मारोगे, तो वो अटेंडेंट्स वहीं पे ही बार बार मैं यही कहती हूँ कि आप अब एक ऐसा इंशाल्लाह, you'll be sitting in a clinic, you'll be dealing with people, you'll be dealing with a person who is bringing his mother for a treatment, maybe for cancer. आपकी एक लाइन भी बोंगी नहीं हो सकती. मतलब
एक बंदा पता नहीं कितने दिन की रातों की नींद परेशानी में काट के आया है कि मदर इज बीन डायग्नोस्ड विद malignancy एंड इज ब्रिंगिंग हिज मदर टू यू, और आप पहली स्टेटमेंट अजीब सी बोल दोगे तो देयर इज नो पॉइंट, ठीक है ना? फिर आप उसके सामने तो आप फेल हो गए ना, ठीक है? वो नहीं ये बातें, सो यू आर गोइंग टू बी, यू आर इन द प्रोफेशन के आपको शुरू से ही अपने आप को ठीक रखना है, ठीक है? या नहीं मारनी, योर सिनेरियो वाज वेरी हाँ वेरी बस बैड बट योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन वाज गुड, और वो वो थोड़ा सारी सा चीजें अच्छा थी। हम्म, सो स्टे काम, आप बीच में शायद टेंस भी हो जाते हो, सांस चढ़ जाता है, डोंट बी लाइक दैट। बड़े बड़े हमने इट्स देखो ये एग्जाम जो है, ये जो आपकी सारी तैयारी है, इवन जो एग्जाम की तैयारी की जो ड्रिल है ना, वो एग्जाम से ज्यादा आपके फ्यूचर क्लिनिक, आपके फ्यूचर पब्लिक डीलिंग, आपके वार्ड्स की डीलिंग्स, आप वार्ड के इंचार्ज हो गए इंशाल्लाह, यूल बी सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके नीचे सारा वार्ड डिपेंड करेगा, एंड ये उसकी ट्रेनिंग होती है बेसिकली। ये जो सारी ड्रिल में से गुजर रहे हो, ये आपकी पर्सनालिटी, एक ग्रूमिंग, एक मतलब एक एक चीज वॉट एवर यू आर सेइंग सिमिलरली उधर मैटर करेगा, ठीक है? तो आपको सांस चढ़ जाना बीच में या घबरा जा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम में, इसीलिए तो देखो इवन अब वाला जो पैटर्न है, आई थिंक उसमें एक चीज और ऐड हो गई पिछले पैटर्न के अलावा, कि क्विकली चेंजिंग द सिनेरियोस, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन वार्ड। एक बेड से दूसरा बेड, दूसरे बेड से तीसरा बेड, सिनेरियोस आर क्विकली चेंज्ड। आपको वहीं पे माइंड में आना चाहिए, ये PIHS का मैंने क्या करना है, ये फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी है, इसका ये मैंने ये इन्वेस्टिगेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट, ये डायबिटीज, मतलब सिमिलर इसी तरह अब इन टॉक्स में आपका है। तो और सिमिलरली क्लिनिक पे एक मरीज आया, दूसरा मरीज एग्जैक्टली उससे एब्सोल्युटली डिफरेंट, मे बी गायनी, मे बी ऑप्स। सो द थिंग इज के ये उसकी एक नई ड्रिल ऐड हुई हुई है, विच इज आई थिंक वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो। सो प्लीज अपने आप को सांस ना चढ़ाओ हिस्ट्री बोलते हुए, योर हिस्ट्री वाज गुड, आप कंफ्यूज नहीं होना, बी कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा ओके पैटर्न देखो, वो जिसे कहते हैं ना, आपकी हिस्ट्री, मैं समझ गई मैम आप जी मैम आई हाँ गॉट योर पॉइंट गुड, आपकी हिस्ट्री ऐसी थी कि अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट में तो पास हो गए। हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए, हिस्ट्री एग्जामिनेशन के उधर अगर एवरेज एवरेज भी बोल दो या इवन अगर ब्लंडर भी मार दो, योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इज सो गुड कि कोई चांस ही ना रहे कि आपको कोई फेल करे ना। और अगर आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन इतना अच्छा हो और आगे जाके भी आप कोई बोंगी ना मारो, तो मे बी आप टॉप ही कर जाओ, राइट? और फिर ये स्टेशन आपको आगे कवर करेगा इन योर डिफिकल्ट स्टेशन, जो एक या दो, एक तो बहुत डिफिकल्ट स्टेशन होता है ये हर एक के लिए, कई एक दफा दो डिफिकल्ट स्टेशन होते हैं। वो इसलिए भी कि कई स्टेशन पे अगर आप फुल मार्क्स भी ले आए हो, या 8 आउट ऑफ 10 ले आए हो, या 9 आउट ऑफ 10 ले आए हो, तो वो मार्क्स आपके कवर करेंगे उन स्टेशन में जिसमें आपके 4 आ रहे हैं, 3 या 2 आ रहे हैं, राइट? तो इसलिए आपका योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन टू शुड बी दैट गुड। हम लोगों ने 4 क्लासेस में इनफर्टिलिटी कवर की थी 2 हफ्ते लगा के, विच वाज आई थिंक वी कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, वी रिपीटेड द हिस्ट्री अगेन एंड अगेन। आप लोगों की बहुत प्रैक्टिस हुई थी, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं हो सकी, यस मैम बट आई होप कि आप विल बी रिपीटिंग द थिंग्स। आई होप कि आप लोगों ने वो नोट्स बना लिए होंगे। वैसे तो मेरी और भी बड़ी क्लासेस यूट्यूब पे है, उसके ऊपर भी है ये सब फर्टिलिटी का, बट विल बी कीप ऑन रिपीटिंग इट, अल्लाह खैर रखे। अभी तो टाइम भी काफी है एग्जाम का, तो इंशाल्लाह और रेपिटेशंस भी होती रहेंगी और रिकॉर्डिंग्स भी अब अवेलेबल होंगी। बट द थिंग इज कि सब फर्टिलिटी, देखो आपके पेशेंट में 2 कंप्लेंट्स थी, शी वांटेड टू कंसीव एंड शी हैड पेन लोअर एब्डोमेन, यस मैम एंड शी इज अ केस ऑफ सेकेंडरी सब फर्टिलिटी। एक स्टोरी की तरह अगर बोलो तो वो और भी अच्छा है। मुझे और अच्छा लगता अगर आप बोलना शुरू करते कि शी इज पैरा 1, previous conception was maybe 2 years 1 year after the marriage, और वो स्पॉन्टेनियस या नहीं थी, उसमें सिजेरियन हुआ था या नहीं हुआ था, ये क्या पता, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई थी या वो दाई ने डिलीवर कराई थी या क्या, राइट? जो कि आपको लगता है कि उस प्रेगनेंसी में स्पेशली कोई हिस्ट्री मैटर कर सकती है उसको सब फर्टिलिटी कॉज करने में। मे बी सिजेरियन सेक्शन हुआ, अंदर एडिशन, मे बी दाई हैंडलिंग हुई हो, मे बी उसका रीओपन हुआ हो सिजेरियन में, या मे बी उसका आफ्टर दाई हैंडलिंग या आफ्टर डिलीवरी कोई POCs रह गया, फिर DNC। तो आप अगर उसको वहां से शुरू करके देन फॉर द लास्ट, इफ दे हैव बीन ट्राइंग फॉर लास्ट 1 year, फिर बच्चा अगर लास्ट 3 साल पहले पैदा हुआ तो 2 साल उन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस की, फिर उसकी थोड़ी सी बात, तो क्या वो कॉन्ट्रासेप्शन उन्होंने कब से छोड़ी एग्जैक्टली exactly? क्या ये वाकई ही सब फर्टिलिटी का केस है? क्या पता ये 3 महीने पहले तक दे हैड बीन यूजिंग बैरियर मेथड्स और मे बी सम कॉन्ट्रासेप्शन। सो दिस हिस्ट्री वुड हैव बीन बेटर अगर ये बातें यहाँ से शुरू होती।
तो सही, मैं समझ गई जी मैम। ठीक है, तो अगर आप हम्म। इसको हिस्ट्री को भी स्टोरी बनाकर बोलो ना, तो कितना प्यारा इंप्रेशन आता है। मैं यही कह रही हूँ कि आपको तैयारी करके जानी है फुल मार्क्स की या 70-80% मार्क्स की इन द स्टेशन, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पैरा वन, प्रीवियस इसकी डिलीवरी की हिस्ट्री, एंड देन अगर कोई कॉन्ट्रासेप्शन करते रहे या कब से एग्जैक्टली दे हैव बीन ट्राइंग, कब से, और उसके बाद सिंस दे हैव प्लान्ड कि नाउ वी शुड हैव अनदर बेबी, तब से आर दे लिविंग टुगेदर और नॉट, राइट? क्या पैटर्न रहा, कोई इंटरकोर्स का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कोई मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें। और उसके बाद यस, फिर आप बेशक शुरू करते हैं कि मे बी दिस पर्टिकुलर पेन इज रिलेटेड टू सब फर्टिलिटी, तो यू कुड हैव स्टार्टेड विद द पेन, और फिर पेन का पीरियड से रिलेट करके फिर पीरियड्स की सारी स्टोरी, उसके बाद फीमेल का हेड टू टो पूरा, ठीक है, जिसमें हम सेंस ऑफ स्मेल का भी जिक्र, जो आपने पॉइंट्स अच्छे बोले हैं एंड यू कवर्ड एवरीथिंग, बट वही बात है कि इट वाज लाइक मे बी अ टिपिकल हिस्ट्री। टिपिकल हिस्ट्री का मतलब ये है कि 50 से 55 वाले मार्क्स, नॉट 60, एंड यू विल गेट 60 इफ यू परफॉर्म रियली वेल इन योर इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट, जिसके चांस बॉर्डर लाइन है। इवन इफ यू गेट 60%, तो आपने तो ये वो स्टेशन है जिसमें मार्क्स लेने आपने 70-80%, ताकि आपको कवर हो डिफिकल्ट स्टेशन में। जो नहीं ये करेगा, वो डिफिकल्ट स्टेशन सबके लिए डिफिकल्ट होता है, कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो डिफिकल्ट स्टेशन में 70% ले लो, इट्स अ वेरी रेयर थिंग, ठीक है। वो एक साइड पे रख दो। तो आपने तैयारी करके जानी है उन डिफिकल्ट स्टेशंस को डील करने में। कोई बहुत औखा आता है, कोई अजीब सा भी आता है, लिम्फ नोड्स है ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड, जो हम बहुत यूज टू नहीं होते अपनी प्रैक्टिस में उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करने के। यस, ऑडिट अब आसान हो गया बिकॉज ऑडिट पे बहुत क्लासेस हो रही हैं, और ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट इन आवर वार्ड्स एज वेल, लेकिन फिर भी लोग फंस जाते हैं उसके अंदर। सिमिलरली एनीथिंग कैन हैपन, कोई स्टरलाइजेशन के किसी रिजीम पे सवाल मतलब ऐसा कि जो आपने ना सोचा, लेकिन वो हर एक के लिए मुश्किल होता है। पास एग्जाम में वो होगा जो कि आसान स्टेशन में फुल मार्क्स लेके निकला है, ताकि उसके वो मुश्किल स्टेशन भी कवर हो जाए, जी मैम, ठीक है। आप सिर्फ सिनेरियो का ही थोड़ा बोल रही थी ना, कि थोड़ा सिनेरियो को ऑर्गेनाइज हो जाता तो फिर वो उसमें नहीं, थोड़ा। मैं हिस्ट्री की अब काफी देर से बात कर रही हूँ मदिया, ठीक है। मैंने आपको पूरा हिस्ट्री का पैटर्न बता रही हूँ, सिनेरियो की बात तो पहले ही खत्म होगी। आपने यही पॉइंट्स को किस तरीके से लेके चलना है वो वाला मैंने बताया, कि इनिशियली यू शुड स्टार्ट योर HOPI विद द पैरा वन थिंग, कि प्रीवियस डिलीवरी की डिटेल्स, उसके बाद आर दे रियली अ केस ऑफ सब फर्टिलिटी, दे हैव बीन, कब से वो ट्राई कर रहे हैं, अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो क्या, वैसे सेकेंडरी सब फर्टिलिटी तो 3 साल के बाद डिक्लेयर होती है, राइट, बाय डेफिनेशन। अगर प्राइमरी 2 साल के बाद डिक्लेयर होती है, तो सेकेंडरी 3 साल के बाद डिक्लेयर होती है। तो लेकिन चलो, फॉर 1 year दे हैव कम, कि वी हैव बीन ट्राइंग फॉर 1 year एंड वी रियली वांट टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग। तो यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि आर दे रियली ट्राइंग इट करेक्टली फॉर द लास्ट 1 year, क्या कॉन्ट्रासेप्शन उससे पहले यूज की, क्या नहीं की। इफ दे आर ट्राइंग, तो क्या दे आर लिविंग टुगेदर और नॉट, इफ दे आर लिविंग टुगेदर, कोई क्वार्टल प्रॉब्लम या क्वार्टल फ्रीक्वेंसी, फिर आपकी सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, जिसमें फिर उसके बाद आप पहले पेन को सारा एलैबोरेट करोगे, पेन को आप हिस्ट्री से फर्टिलिटी से लिंक करोगे, उसके बाद पेन के बाद आप हेड टू टो फीमेल की सारी हिस्ट्री लोगे। सॉरी, म्यूट करिए आप सबको, और ये कमीज चेंज कर दो, कोई और कमीज नहीं, कल पहनी थी। सॉरी। अच्छा, तो उसके बाद आप सारा वो करोगे, क्या उसे कहते हैं, हेड टू टो फीमेल वाली जो आपने पॉइंट्स कवर किए, उसके बाद आप मेल की हिस्ट्री, राइट। फिर देखो, इवन बेटर, वैसे तो शीज बीन ट्राइंग ओनली फॉर 1 year, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशंस का जिक्र बहुत शुरू में किया नहीं, पेन का एक मसला मिल रहा था, वो सारा कुछ। लेकिन चलो, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट अप टिल नाउ का भी जिक्र हो तो वो बहुत बेहतर। उसके बाद आपने उसका एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इस तरीके से करोगे तो वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके मैम, मतलब इस वाली हिस्ट्री में आप कह रही हैं कि मैं प्रीवियस उसकी ऑफ्स की हिस्ट्री से स्टार्ट करती, कि जी वो उनकी कैसी जी थी, उसमें कोई जी, कॉम्प्लिकेशन नहीं था। सॉरी। अच्छा, इमराना ने अभी क्वेश्चन किया है कि ओवेरियन मास की हिस्ट्री में इनफर्टिलिटी की होल हिस्ट्री लेनी है। इफ अ पेशेंट इज हियर विद अ कंप्लेंट ऑफ सबफर्टिलिटी एंड यू गॉट अ मास इन द पेल्विस, तो ये दोनों मिलाकर लेनी है, बिल्कुल। इट्स अ केस ऑफ अ मास विद सबफर्टिलिटी, ठीक है। तो आपने सबफर्टिलिटी की भी तो लेनी है ना हिस्ट्री, ठीक है। चलो, और कोई मैम, लेकिन क्वेश्चन? अगर कोई पेशेंट आती है कि यही इसी कंप्लेन के साथ आती है, तो हम तो कंप्लेन के साथ नहीं स्टार्ट करेंगे मैम। मुझे थोड़ी सी ये क्वेरी है कि आपने पेशेंट एक कंप्लेंट आप। से ही करना है, कंप्लेंट से ही आपने स्टार्ट किया कि शी वांट्स टू कंसीव एंड शी हैज गॉट पेन लोअर एब्डोमेन।
मतलब फिर वो पेन की डिटेल लेके बाद में मैं ऑप्स हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगी, या पहले उसकी ऑप्स हिस्ट्री तो मैं नहीं ले सकती? जैसे ओपीडी में भी अपने पेशेंट आया था तो मैंने उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से ही स्टार्ट किया था, जैसे नहीं, वो कह रही थी कि मुझे आप पेन पहले है। पूछो। देखो मैथ्स जो है वो उसकी जो मसला है ना, फ्रेंकली शी हैज कम विद पेन लोअर एब्डोमेन बट शी वांट्स टू कंसीव आल्सो। अगर आप इसको स्टोरी की तरह लेके चलो, अभी हम डीडी पे बात करेंगे, ठीक है? डीडी के ऊपर आपको समझ में आएगा कि ऑप्स की हिस्ट्री, प्रीवियस ऑप्स हिस्ट्री रिलेटेड टू सब फर्टिलिटी इज इम्पोर्टेंट। आपने देखो मैथ्स की हिस्ट्री बहुत दूर नहीं की, या पेन की हिस्ट्री बहुत दूर नहीं की, सिर्फ पहले एक दो स्टेटमेंट्स बोली हैं कि शी इज पैरा 1 with no previous complication in the previous pregnancy or intrapartum सही complication, सही सही ठीक है? सही। And now she has been trying for last 6 months or for 1 year, but before this 1 year she was practicing contraception, which was this or barrier methods, and now for the last 1 year they have left the contraception and they've been trying with the normal coital frequency, or there is no history of dyspareunia etc. She complains of pain lower abdomen, this is this, फिर पेन को elaborate करो, मैस मिलता है उसको थोड़ा elaborate करो, उसके बाद से fertility की पूरी हिस्ट्री ले लो, सही। ठीक है ना? मतलब मैम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हमें ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री हर सूरत में जो है उसको मतलब साथ लेके चलना है। नहीं साइमा, नहीं 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 केस नहीं टू केस पे डिपेंड करता है नहीं ना। नहीं 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 साइमा, मैंने ये नहीं कहा कि हर मरीज में ऑप्स की हिस्ट्री से शुरू करना है, खुदा ना खास्ता, प्लीज डोंट डू दिस। ये पेशेंट है सेकेंडरी सब फर्टिलिटी का। इफ शी इज अ केस ऑफ सेकेंडरी सब फर्टिलिटी तो उसका पहली कंसेप्शन का जिक्र स्टार्ट, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी का तो जो कंप्लेंट है वो इटसेल्फ सेज के पहले कंसीव किया उसके बाद कंसीव नहीं किया, तो आप उसकी कंसेप्शन से हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? हर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अब पेशेंट आई है फैमिली कंप्लीट करके 35 इयर्स ऑफ एज विद मास लोअर एब्डोमेन, फाइब्रॉइड का वो केस है, आप उसके पैरा 3 की बातें किए जा रहे हो, तो मतलब दैट्स रबिश। वो तो आप ऑप्स की हिस्ट्री में ही बोलोगे, ठीक है साइमा? आई होप यू गॉट इट, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम, थैंक यू मैम। इसको रिलेट करो, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी का केस है तो आप स्टार्ट करोगे उसकी ऑब्वियसली प्रीवियस कंसेप्शन से, मेक इट इट अ केस ऑफ सेकेंडरी सब फर्टिलिटी। उसके अलावा बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में यस, और इन मिसकैरेजेस में यस, आप उसका प्रीवियस हिस्ट्री से शुरू करोगे। उसके अलावा ऑप्स के कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें आप उसका स्टार्ट कर सकते हो प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री का, जैसे कि एक पेशेंट आई है एनॉमलस बेबी के साथ एंड हर प्रीवियस बेबीज वर आल्सो एनॉमलस, या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन के साथ, एंड यू नो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है आपका क्या स्टाइल है, जरूरी नहीं है ये मैं बता रही हूँ, बट इस तरीके से आपको एक स्टोरी की तरह लगेगा। बट अगर आपका ये स्टाइल है कि फॉर एग्जांपल इस केस में तो इट्स बेटर इफ यू स्टार्ट विद द प्रीवियस हिस्ट्री, लेकिन अगर आपका ये स्टाइल नहीं है, लेकिन सेकेंडरी सब फर्टिलिटी में कोशिश करो ये बना लो, बिकॉज इससे और बेहतर लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज नॉट योर स्टाइल तो यू कैन स्टार्ट विद से सब फर्टिलिटी हिस्ट्री, पेन की हिस्ट्री ली, सारी हिस्ट्री हेटरोली, फिर उसके पैरा 1 वाली का जिक्र कर दिया कि प्रीवियसली क्या था सारा। यू कैन डू इट दैट वे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं आपको एक वैसे बता रही हूँ कि सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है इफ यू स्टार्ट right from the previous obstetrical history and you declare that she really is a case of secondary subfertility। हाँ मैम, मैं समझ गई वो आप कह रही हैं कि आपका वे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, चीजें तो ये सही है लेकिन वे ऐसा होना चाहिए कि वो क्लियरली पता चल जाए कि आप किस तरफ जा रहे हो या ये किस चीज का है। हाँ ये चीज बिल्कुल कि आपको एग्जैक्टली पता है कि इस मरीज को किस तरह से लेके चलना है, हैपहैज़र्डली नहीं है, ठीक है? सही है। अच्छा मैम, इस पेशेंट में क्या था कि उसके हस्बैंड को ये हिस्ट्री थी, मतलब कि वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को मतलब कि डिस्चार्ज है, उन्होंने इलाज तो नहीं करवाया, फिर खुद ही छोड़ गया 4-5 महीने पहले का, वो साथ ही रहते थे, कोई वो मतलब है वो ड्राइवर है वो सुस्की वगैरह के, तो मुझे उससे हिस्ट्री मिली। बाकी प्रीवियस उसकी जो हिस्ट्री थी ना वो बिल्कुल सही थी, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, वो हॉस्पिटल बेस्ड ही थी डिलीवरी उनकी, तो उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, वो पूरी हिस्ट्री मुझे सही दे रही थी। बाकी कॉन्डोम बोलो कि नहीं यूज, आई अंडरस्टूड उसकी ठीक होएगी, वरना आप ऑब्वियसली मेंशन कर देते, लेकिन एग्जामिनर को अंडरस्टूड मैं समझ गई और मैं वो कोई कंट्रासेप्शन कंडोम वगैरह नहीं यूज कर रहे थे। ग्रेट, चलो गुड। अच्छा किसी ने और कोई, अब आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर। सो पहले तो हर चीज में ये डिफाइन करना है कि क्या
आपके पेशेंट को जो कंप्लेंट है वो क्या वाकई कंप्लेंट भी है, यानी कि अगर वो सब फर्टिलिटी है तो क्या वो वाकई सब फर्टिलिटी है। क्या पता कई लोग 2 महीने की ट्राई करने से आ जाते हैं, बच्चा पिछले 4 साल का होता है लेकिन खुद तो 2 महीने से ट्राई करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद अगर कोई पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अनदर पेशेंट जो HMB के साथ है, तो क्या वाकई उसको HMB है, वो तो पता चल जाएगा नीमिया से, एक्सेप्ट कि वो कोई आयरन ऑलरेडी ले रही है। अगर वो आयरन भी नहीं ले रही है, वो कंटिन्यूसली कही जा रही है कि उसे HMB है, बट HB उसका 12 है, तो शी डेफिनेटली इज नॉट हैविंग दैट कंप्लेंट। आपको वो रूल आउट भी, आपने एग्जाम में भी ये चीज देखनी होती है कि क्या मरीज को वाकई में ये मसला है, मतलब एट टाइम्स वो उनको परसीव कर रही होती है कि वो बहुत ज्यादा मसला है, लेकिन मेडिकली भी तो उसको डिफाइन करना होता है। तो ये चीज भी आपने इस तरीके से लेके चलना है। गुड। जी मैम। तो और मैम LMP इसकी 20 डेज बैक की थी। गुड, तो अब मैं इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करूं। वेरी गुड, करें। Okay, ma'am. I need the baseline investigations in which I baseline पूरी बताऊं मैम, बताएं जल्दी से। in which I need the complete blood count. I need hemogram in gram per deciliter in total leukocyte count and platelet count in cubic millimeter. I need blood group with Rh factor. I need anti-hepatitis B, anti-hepatitis C virus antibodies, hepatitis B surface antigen. I need random blood sugar levels and complete urine examination, including the microscopy and biochemistry. Then on specific investigations, I need the semen analysis of the husband along with the date. I need the serum beta ICG level also in the female. I want to know about her hormonal profile, including the LH, FSH level and thyroid function test. I would also want to know about her serum progesterone level, day 21 in a 28-day cycle. There was the discharge also, so I would like to take about the swab, vulvovaginal swab. I also need the ultrasound of my patient, in which I would like to know about the size of the uterus, endometrial thickness, and the regularity, any fluid in the endometrial cavity, myometrial ecotexture, endometrial myometrial junction, any other mass. Any presence of the pio or high hydrosulfans also. In ovary, I would like to know about the presence of, is there any presence of the cyst or mass? What is the size of the ovaries? आप बोलते हैं। Hello. Okay, I want to know about her pap smear, if it has been done or not. If it has been done, then I want to review the record of the patient. तो investigations तो हो गई मेरी, अब मैं Madiha, you should add 5 points of discharge as well, like odor, color, smell. okay जी itching. लेकिन ये अभी मैम You should also explain if she was having any discharge. जी डिस्चार्ज था उनको, मैं बता रही हूँ, वो सिर्फ फाउल स्मेलिंग प्रिलुएंट डिस्चार्ज था एंड कुपिक्स इन अमाउंट था उनको, ब्लड स्टेन वगैरह तो नहीं था, फाउल स्मेलिंग थी बस। ठीक है, यही अच्छा था सॉरी, problem था। बेसलाइन के बाद जो बोली हम जरा दोबारा बता दो, फिर करते हैं जी बात। मैम, जी मैम, in specific investigations I need the serum beta, her serum beta ICG levels. I need the hormonal profile, including the luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, thyroid function test, and day 1 progesterone level in a 28-day cycle. कौन सा प्रोजेस्टेरोन day 21 progesterone level in a 28-day cycle. Ma'am, discharge was present and discharge was purulent and foul smelling, and I need vulvovaginal swab for that. Okay. I also want to know about the ultrasound of the pelvis, in which I need to know about the size of the uterus, endometrial thickness and regularity, and any fluid in the endometrial cavity or in the pouch of the Douglas, endometrial myometrial ecotexture, endometrial myometrial junction, any other mass. I want to know about the size of the ovaries for the presence of any mass in the ovaries or not. If there is any mass, then detail of that mass, including that whether it is unilateral or bilateral, any unilocular or multilocular cyst is there or not, septa is there or not, and solid or cystic. अच्छा मैम, एक चीज जो मैं मुझसे रह गई थी वो ये था कि डिस्चार्ज था उस पेशेंट को, प्यूलेंट था, फाउल स्मेलिंग था और कॉपियस अमाउंट में था। ठीक है। पर स्पेकुलम इमेज में। अच्छा मैम, सीमन एनालिसिस का मैंने स्टार्ट में बोल दिया था कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आई नीड अलोंग विद द डेट ऑफ द पेशेंट।
शुक्र है, नहीं यू आर गुड। नहीं आपने अच्छी बोली है इन्वेस्टिगेशन, तो बिल्कुल ठीक है, मोरलेस इसी तरह ही सारी हैं। और डिस्चार्ज यस आपको उस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही हमें बता देना चाहिए था, पर चलो इफ यू हैव मिस्ड तो आपने इतना तो फिर चलो बाद में आपने बता दिया, लेकिन कोशिश करो कि वो चीज उधर ही कवर हो। जी सो मैम। ठीक है, किसी ने ऐड करना है इन्वेस्टिगेशंस में? मैम अगर इस पेशेंट की टीबी की पॉजिटिव हिस्ट्री होती, टीबी कंटैक्ट की, तो क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते कि हमें वो भी रूल आउट हो जाए? देखो अगर आपने सिर्फ टीबी की करानी है ना, तो एक ही सबसे अच्छी वाली इन्वेस्टिगेशन बोल दो, वो है IgRA टेस्ट, इम्यूनोएसे टेस्ट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, क्योंकि it has got very good sensitivity and you think कि patient has got secondary subfertility and for example her sister had tuberculosis या first degree relative या direct contact वाले किसी का tuberculosis है उसका, and you should actually, तो एक आप जो बेस्ट वाला टेस्ट है वो IgRA टेस्ट है। HBS उन्होंने कहा था मैम ये मैंने I was वल्वो in- विजाइनल जी मैम सब बोला था, और सीरम बेटा इसे जी मैंने इसलिए बोला है कि 20 डेज बैक की उसकी LMP है ना, तो 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 मैम आपने मैंने बीटा नहीं LCG सिर्फ तब कराना है अगर उसके पीरियड्स मिस हुए हो, ओके right? डन डन उसके डन मैम। अलावा नहीं कराना किसी मरीज में, उसकी वजह ये कि एक्सपेंसिव टेस्ट है एंड देयर इज नो जी पॉइंट। मैम मैं समझ गई ओके इवन ओके आप ओके एक कोई इन्वेस्टिगेट कोई प्रोसीजर भी करने जा रहे हो ना, और पेशेंट की पीरियड्स अभी मिस नहीं हुए, फॉर एग्जांपल 20 डेज बैक, यू गो अहेड विद द प्रोसीजर, वी डोंट गेट दैट बीटा एचसीजी डन इन एवरी पेशेंट एक्सेप्ट कि उसके पीरियड्स मिस हो गए। अच्छा मैम इसकी अल्ट्रासाउंड स्कैन पे यूनिलेटरल साइड पे मास था, ठीक है, और वो 5 सेंटीमीटर का ही था। बताओ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स हमें। ठीक है, 5 जी सेंटीमीटर मैम। का क्या था? विच साइड, मैम लेफ्ट साइड और राइट साइड? मैम राइट साइड पे था, ठीक यूनिलेटरल था, है। बायलेटरल नहीं था, और उसमें कोई वो सॉलिड कंपोनेंट वगैरह नहीं थे, बस एक मास ही बताया था, सेप्टा बताए हुए थे, इनकम्प्लीट सेप्टा है, और कुछ ज्यादा तो मजीद उसके स्कैन में नहीं था, ठीक है, गुड। यही मुझे मिली थी। ठीक है, सो इफ a mass is given on ultrasound, जी how मैम। will you go? यही mass है, तो बताओ फिर जी मैम। what else do you want? जी मैम इसमें ही मुझे क्वेरी भी थी कि मैंने कहा मैं मैम से डिस्कस करूंगी, लेकिन जो मुझे समझ में आया था कि मैं आप ये जो एग्जाम फीचर्स सिनेरियो में you are given this ultrasound, what else do you want? डिटेल्स नहीं चाहिए मैथ्स की? जी मैम वो बताई थी ना कि यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, यूनिलोक्यूलर है या मल्टीलोक्यूलर होगी, और जो है अगर सॉलिड या सिस्टिक कोई सॉलिड कंपोनेंट कोई है वो चाहिए, ब्लड फ्लो चाहिए मुझे उस मास का। मैम यही होंगी या कोई और भी होंगी? सेप्टी है, आपको थिकनेस ऑफ सेप्टी चाहिए, आपको कैप्सूल का चाहिए, आपको ब्लड सप्लाई चाहिए, डॉपलर चाहिए ना? जी मैम ब्लड ठीक सप्लाई है, का तो मैंने बोला था जी मैम। what तो else मैम do you तो want? इसमें जी मैम और तो मुझे नहीं लगा कि मुझे ट्यूमर मार्कर्स बोलने किसी और चाहिए, ने, क्योंकि ठीक है, किसी और ने क्योंकि कुछ और ऐड करना हो? मैडम इस ITs का पूछेंगे? ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। और ठीक है, तो बस ठीक है, आपको मिल गई इन्वेस्टिगेशंस। चलो आगे चलो फिर मदिया, जी ट्यूमर मैम मार्कर्स नहीं मांगेंगे, सिंपल टेस्ट सिंपल सिस्टर और रिप्रोडक्टिव एज है, और उसको इन्फेक्शंस के क्लियरली आप करो सिम्टम्स अब आगे, हैं। जी मैम। मैंने ट्रीट करें। जी देन आई विल एग्जाम काउंसिल में माय। आपने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बोली ना, उर्दू में कोई एक्स्ट्रा कम्युनिकेट करने की कोशिश करना एग्जाम में, वहां पे ही आपका सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। आपसे मैनेजमेंट पूछी जा रही है, मैनेजमेंट बोलो। आपसे पूछा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में व्हाट एल्स डू यू वांट, कोई कहानी नहीं बोलनी, उसको डिस्चार्ज था इसलिए मैं जस्ट आस्क आई वांट दिस, दैट इज इट। ठीक है, ओके एग्जाम में पास वही होता है जो एग्जामिनर के सामने आंखों में आंखें डाल के 2 लफ्जों में जवाब देता है, याद रखना। कभी नहीं डरना है किसी से। और ये वैसे फ्रैंकली कहा यही जाता है ना कि जब आप पास उस दिन होते हो जिस दिन एग्जामिनर आपको अपने से ऊपर नहीं लगता, ठीक है ना? यू डोंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन इन व्हाई। आप यू नो योर वर्क, यू नो योर नॉलेज, आपकी एक ग्रिप होनी चाहिए अपनी थ्योरी और नॉलेज पे, ताकि आप अगले को आंखों में आंखें डाल के टू द पॉइंट जवाब दो, और वो अगला सवाल ना करने वाला उससे रिलेटेड, उसे पता हो, इसको पता है कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, सो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कुछ नहीं। एग्जाम सिनेरियो का मतलब ही है जवाब दो और अगला सवाल है, दैट इज इट। चलो अब बताओ,
How will you I will manage? counsel my patient regarding the diagnosis that she is having the tubo-ovarian mass. Regarding the, I will further want to tell her about the complications which could arise because of that, and the treatment options and pros and cons of the each option. My aim of the treatment is to relieve her symptoms, to improve her quality of the life, and to address her concerns. Then I will admit my patient, and then start antibiotic cover, parenteral antibiotic cover in the form of the जो कि हम IV ceftriaxone 2 ग्राम 3 times in a day, और उसके साथ जो हम IV doxycycline 100 milligram twice in a day. What do you को- think she's having? What Ma'am, is the tubo-ovarian depression? tubo-ovarian mass. Yeah, tubo-ovarian mass. What mass? You think she's having an abscess or what? जी मैम एब्सेस ही लग रही है, मतलब ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, आपको पूछना चाहिए था मैनेजमेंट से पहले कि मुझे यूरिन कंप्लीट की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है? बिकॉज शी ठीक इज है, हैविंग हाँ। पेन दो हम्म, वजूहात यहाँ पे नजर आ रही हैं। या तो ओवेरियन मास से रिलेटेड है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड ओवेरियन मास जब डीडी पूछा गया, या फिर यूरिन नॉन गायनोकोलॉजिकल यूरिनरी या मस्कुलर पेन हो सकती है, राइट? सो ट्यूबोवेरियन एब्सेस के लिए तो आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसमें एब्सेस तो नहीं आया, आपकी जी फाइंडिंग मैम। सिस्ट वाली है, एब्सेस की तो ये फाइंडिंग नहीं होती, ठीक है? और secondly, your patient is not having any fever, any tenderness, any even change of temperature of skin, or any abscess has got few clinical features. Patient को देख के एग्जामिन करके पता लग रहा होता है कि उसके क्या clinical features हैं. So if it is not related to this mass, then it may be related to urinary problem. हो सकता है उसे UTI हो सकता है, हाँ एक चीज आपकी जा रही थी डिस्चार्ज की, लेकिन ट्यूबोवेरियन एब्सेस है अपर जीआई की इन्फेक्शन, डिस्चार्ज होता है लोअर जीआई इन्फेक्शन में। डिस्चार्ज जो है वो उसका एक्यूट है, कोई उसका डिस्चार्ज उस तरह नहीं है कि हम कहें कि it is indicating that she is having tubo-ovarian abscess, right? So आप उसको कुछ भी और कंफर्म किए बगैर उसको एडमिट करके एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, फिर पता नहीं क्या होगा। सो इस तरह से नहीं, ठीक है? ओके ओके। अच्छा, कोई और वॉलंटियर भी करे मैनेजमेंट में? किसी ने कहा ट्यूबोवेरियन एब्सेस की क्या अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स होती हैं? ट्यूबोवेरियन एब्सेस की वही फाइंडिंग्स होती है मोर लेस जो एक मैलिग्नेंट मास की होती है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मास, इट हैज गॉट थिक सेप्टी, इट हैज गॉट डेब्रिनस फ्लूइड इनसाइड, इट हैज गॉट अ थिक कैप्सूल, उसके अंदर सेप्टी और मल्टीलोकुलर सा होता है। इट्स नॉट लाइक दिस यूनिलोकुलर थिन सेप्टी, थिन कैप्सूल, सिंपल सिस्ट। ट्यूबोवेरियन एब्सेस मोर लेस वैसा, इवन इंट्राऑपरेटिवली देखने में भी काफी मैलिग्नेंसी जैसी लुक की होती है उसकी। मैडम उस एब्सेस में तो पेशेंट की सिम्टम्स भी चेंज हो जाएंगी, पेशेंट फीवर के साथ आएगी, एब्डोमेन टेंडर होगा उसका। बिल्कुल सेप्टिक सी लुक होती है उसकी, वेट लॉस की हिस्ट्री होती है, फीवर उसको ऑफ एंड ऑन हो रहा होता है, पेन लोअर एब्डोमेन उसको बेनतहा होता है, और फिर जब आप उसको एग्जामिन करते हो तो हाथ वो लगाने नहीं देती। मैनुअल एग्जामिनेशन इज सो टेंडर, और एक फिक्स्ड सा सॉलिड सा मैस आपको बाय मैनुअल, मतलब यू नो कि एब्सेस में कुछ तो बात हो ना करने वाली कि ये एब्सेस है। जब कुछ ना हिस्ट्री में, ना एग्जामिनेशन में, ना इन्वेस्टिगेशन में कुछ है, तो आप उसको एडमिट भी कर रहे हो, उसे आईवी एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट, ठीक है? और इवन यहाँ तक कि उसकी तो हिस्ट्री में कोई कॉज भी मिल जाती है आपको एब्सेस में, उसने कुछ ना कुछ कराया होता है प्रोसीड, मतलब एब्सेस भी बैठे बैठाए नहीं बन जाता किसी मरीज में, उसकी कहीं हिस्ट्री में इंटरवेंशन अजीब सी हुई होती है जिसके बाद उसको वो बनना शुरू हुआ होता है। सो आपको पता लग जाता है, इसलिए आपका वो नहीं होता। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन की हिस्ट्री भी होती है, ठीक है, गुड। सो कोई और भी वॉलंटियर करे, फिर हम दोबारा मधिया पे आते हैं जी। फिस्टुला भी बन सकता है अगर वो हो। क्या बन सकता है? फिस्टुला देखो जो रेयर चीजें है ना, उसकी बात आपने नहीं करनी एग्जाम में। फिस्टुला में तो पेशेंट आएगी, उसकी पहली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी डिस्चार्ज की,
गलत रास्ते से कुछ आता है, ठीक है ना। फिस्टुला का मरीज की तो कंप्लेंट ही कुछ और होती है. शी फॉरगेट्स अबाउट सबफर्टिलिटी, शी फॉरगेट्स अबाउट एवरीथिंग. शी इज ओनली कंसर्न्ड कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फिस्टुला बन गया फीकल, तो फिर तो उसकी कंप्लेंट साफ सुथरी सी होती है कि जी नोबडी वांट्स टू सिट विद मी, देयर इज अ फीकल स्मेल एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस. अगर उसका जो फिस्टुला बन गया पेरिएनल फिस्टुला, उसके अंदर वो आती है उस कंप्लेंट के साथ कि एक नॉन स्टॉप अजीब सा, इट्स नॉट फ्रॉम द एनस, इट्स नॉट फ्रॉम वजाइना, इट्स समवेयर इन द स्किन ऑफ द पेरिनियम. देयर इज सम इरिटेशन ऑल द टाइम एट वन पर्टिकुलर पॉइंट and a discharge coming out at one particular point. उसकी तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही और होती है. बैठे बैठाए किसी मरीज में फिस्टुला कह के तो अपने काफी बड़ी कुल्हाड़ी मारने वाली बात है पाऊँ, ठीक है ना. तेरा कोमल को कुछ कहने दे. हाँ जी कोमल. मैम हमारे पास एक पेशेंट आई थी, तो मैम उसका एक्चुअली पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस की मैम वो था, और वो कंप्लेंट कर रही थी वेजाइनल डिस्चार्ज की. और मैम उसने जो फिस्टुला बनाया था, हमारी मैम जो हमारी सुपरवाइजर ने एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया किया, तो मैम दैट वाज फिस्टुला पाउच ऑफ डगलस में मैम उन्होंने वो किया था. पाउच ऑफ डगलस में था, और उसका ट्रैक किधर निकलता था? और मैम उसका ट्रैक जो था मैम वो मैस उसने बनाया हुआ था. आई डोंट नो कि मैम वो उस किस तरह था, यानी कि मैम ओवरीज और मैम इस जगह पे मैम वो था ना, नहीं, ओवेरियन मैम उसने सही वो बनाया हुआ था. पीओडी में फिस्टुला के क्या मतलब होता है कोमल? मैम वेजाइना में मैम उसका फिस्टुला बना हुआ था. अच्छा, पोस्टीरियर फॉर्निक्स में फिस्टुला बना हुआ था. जी मैम. एंड इट वाज, और मैम जब हमने वो किया तो मैम इट वाज एक्चुअली शी वाज हैविंग ट्यूबरकुलोसिस और पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस. देखो बात ये है कि दिस इज अगेन अ वेरी रेयर केस. पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कैसे डायग्नोज होता है? पेशेंट उसमें आता है आपके पास, उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है ना, नंबर 1 वो होती है एक वेजाइनल डिस्चार्ज क्रॉनिक किस्म का, जो कभी सेटल ही ना हो. पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस अ वेरी वेरी रेयर थिंग जो डिस्चार्ज के साथ है. इट्स कॉल्ड वेजाइनल ट्यूबरकुलोसिस, इट्स नॉट इवन पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस, जो वेजाइना के अंदर आ गया है. उसमें पेशेंट की कंप्लेंट होती है नॉन स्टॉप डिस्चार्ज की. वो डिस्चार्ज आप लेके एग्जामिन भी कर लेते हो, आप सारा कुछ कर लेते हो. 1 मिनट, सॉरी मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, मैं अभी लेके. अच्छा, सो सॉरी हॉस्पिटल से कॉल. अच्छा, फिर वो क्रॉनिक डिस्चार्ज के साथ आती है. मैं एक डॉक्टर है, उसने एग्जामिन किया, डिस्चार्ज लिया, आपको ट्रीटमेंट दे दी, तो नहीं सेटल हो रहा किसी भी चीज से. देन यू रियली डू ईयूए. और उसके अंदर अगर टीबी की हिस्ट्री आपको मिल जाती है कांटेक्ट में, आप फर्स्ट इंस्टेंस में ईयूए नहीं रखते होते इन पेशेंट्स का कि आप चलो डिस्चार्ज मैनेज करो, ये वो, शी इज नॉट हैविंग एनी अदर कंप्लेंट्स, फर्टिलिटी वगैरह नहीं है, टीबी चलो बहन को थी, अब डिस्चार्ज डिस्चार्ज डिस्चार्ज. उसका डिस्चार्ज आपने देख लिया, 2-3 हफ्ते हो गए, नहीं आपकी ट्रीटमेंट से भी सेटल हो रहा, तो यू कैन प्लान ईयूए और यू कैन जस्ट सेंड एएफबी इन द वेजाइनल डिस्चार्ज. ठीक है, वो पॉजिटिव आ जाए या आप ईयूए करो जैसे आपके सुपरवाइजर ने. बिल्कुल ठीक, दैट वाज सच अ गुड एंड एन यूनिक डायग्नोसिस दैट योर सुपरवाइजर मेड, व्हिच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव. क्योंकि एक और ऑप्शन ये होती है कि अगर आप ईयूए पे नहीं जाना चाह रहे हो, आप उस डिस्चार्ज का एचवीएस भेजा, वो एएफबी के लिए भेजा और एमआरआई कराया. एमआरआई पे फिस्टुला पिक हो जाता है. एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो डिस्चार्ज 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 पेशेंट आ रहा है, आपने उसे क्लिनिक पे एग्जामिन किया, देखो जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स का फिस्टुला है, विदाउट मतलब हम नहीं डायग्नोज कर सकते क्लिनिक पे ना. हम कहाँ, मतलब पोस्टीरियर फॉर्निक्स की चीज डिस्चार्ज से भरा हुआ वजाइना है, नहीं हो सकता डायग्नोज क्लिनिक पे. लेकिन अच्छा, पेशेंट आ रही है फॉर एग्जाम्पल, डिस्चार्ज 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 नहीं सेटल हो रहा, और आपने उसे एग्जामिन किया और आपको लगता है कि डिस्चार्ज इज एक्चुअली नॉट कमिंग फ्रॉम वजाइना, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम एनस, इट्स कमिंग फ्रॉम स्किन इन बिटवीन, कहीं पेरिनियम के ऊपर एक पॉइंट है, वहां से डिस्चार्ज आ रहा है. सैंपल बेशक भेज दो उसके डिस्चार्ज का कल्चर वगैरह के लिए, बट उसका एक एमआरआई जरूर कराओ. इफ शी इज हैविंग दिस डिस्चार्ज फॉर लास्ट मेनी मंथ्स, और वो ही पिन पॉइंट जगह है जहाँ पे उसे इरिटेशन है, और वो एमआरआई पे ट्रैक आ जाता है. So patient can come with a perianal fistula all of a sudden.
This is such a rare case that Komal told us. It was like learning for all of us के posterior fornix में POD से फिसला. Yes, TB can lead to इतने गंदे फिस्टुलास, इसलिए तो कहते हैं TB वाले मरीज को बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना. उसको पहले ATT दो, उसके बाद उसकी कोई, अगर आपने मैस निकालना है कोई सर्जरी करो, क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्ट OT में ले जाके उसका मैस निकालोगे या उसकी सेल्फिंजेक्टमी करने ले जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलता, और अननोइंगली यू एंड अप इन मेकिंग फिस्टुलास, बिकॉज इतने फ्रेजाइल टिश्यूज हुए होते हैं, कहाँ से क्या चीज टच हो जाए, और लेटर ऑन इट एंड्स अप इन फिस्टुलास. सो लेकिन ATT डज मैजिक टू द पेशेंट. बहुत अच्छी चीज है ATT से. अगर आप बिफोर ATT पेशेंट को देखो इंट्राऑपरेटिवली और बाद में ATT के देखो, तो पेशेंट वो लगता ही नहीं कि वही पेशेंट है. इतना अच्छी एनाटॉमी हो चुकी होती है ATT के बाद. सो यस, एज कोमल मेंशन, लेकिन फिस्टुला की हिस्ट्री में उसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन में मुश्किल होता है उसको डायग्नोज करना फिस्टुला को, स्पेशली इस किस्म के EUA या फिर उसका AFP का सैंपल और MRI. इससे कुछ आपको अंदाजा होता है कि देयर इज अ ट्रैक और एनीथिंग. ठीक है. सो दीज आर द 2 ways यू कैन गो अहेड. सो इस वाले पेशेंट को कोई जल्दी से मैनेज कर दे. मैं तब तक आपके क्वेश्चंस भी पढ़ रही हूँ चैट पे. आप कोई वॉलंटियर करे. दिस पेशेंट इज हैविंग 5 centimeter simple cyst, शी इज 30 years of age with secondary चलो कह लो सब. मैं इसे वैसे इतना सेकेंडरी सब फर्टिलिटी नहीं कहूंगी, सिर्फ 1 साल से वो ट्राई कर रही है. एंड बट शी इज हैविंग पेन लोअर एब्डोमेन. केस बहुत अच्छा लग गया मदिया. चलो पहले कोई और मैनेज करे, फिर हम दोबारा मदिया के पास आएंगे. मैम मुझे सिर्फ ये क्वेरी थी कि जैसे आपने बताया कि अगर कोई ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस होती तो ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स और मल्टी लोकुलर सा मास होता, मैलिग्नेंट लाइक आपने मुझे बताया. तो मैम तो फिर उस केस में भी हम क्या ट्यूमर मार्कर्स मांगते हैं उस पेशेंट से? हाँ, मुझे ये तो ये मांगेंगे ना. देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स होता, बेशक आप एब्सेस कर रहे हो, अपने DD में रख रहे हो, लेकिन हमारे DD में मेलिग्नेंसी भी तो है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैस है. उसके अंदर M रूल ज्यादा आ गया, तो आप उसमें ट्यूमर मार्कर्स भी मांगोगे. अच्छा, भले उसको जो है वो विजाइनल डिस्चार्ज की या कोई इसकी भले अच्छा. वो कहे यस, भले वो कहे मैंने दाई से इंटरवेंशन कराई थी, दाई ने स्वैब्स रखे थे जो निकाले थे किसी डॉक्टर ने, लेकिन आपको स्कैन के ऊपर उन्होंने दे दिया वह कॉम्प्लेक्स मैस जिसमें सेप्टी है, जिसमें डेब्रिनस है, एक्सेट्रा. क्योंकि अगर आप उसकी ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो, यू हैव टू रूल आउट मैलिग्नेंसी. ऐसा ना हो कि आप उसकी ट्रीटमेंट करी जा रहे हो लेकिन मैलिग्नेंसी रूल आउट नहीं हुई. राइट. मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स फीचर आए तो हम करवाएंगे ट्यूमर मार्कर. सही. ओके, ठीक है. मैडम इसमें HSG का रोल होगा? HSG इन्वेस्टिगेशन में करेंगे इनफर्टिलिटी? बड़ा अच्छा सवाल है. अच्छा देखो, पहले तो ये तो डिक्लेयर करो कि क्या ये सेकेंडरी सबफर्टिलिटी है या नहीं. शी हैज कंसीव्ड वंस, ट्यूबें तब ठीक थी तो इसने कंसीव किया ना, उसके बाद कोई और इंटरवेंशन नहीं हुई इसकी, और अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ उनको ट्राई करते हुए. मतलब इज शी रियली अ कैंडिडेट फॉर ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट? इवन हम प्राइमरी सबफर्टिलिटी में भी कई दफा 2 साल के बाद भी कह देते हैं ट्यूबल पेटेंसी कराएं. राइट. एंड शी इज ओनली 30, शी इज यंग, शी इज गॉट 1 child ऑलरेडी, और अभी साल ही हुआ है उन लोगों को ट्राई करते हुए. तो यू कैन जस्ट थिंक कि कोई ट्यूबल पेटेंसी की इस वक्त जरूरत है या नहीं, या फिर आप पहले उसको यू नीड टू डिस्कस विद द पेशेंट. 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं. देखो शी इज नॉट, देखो सेकेंडरी सबफर्टिलिटी मैंने आपको बताया है कि बाय डेफिनेशन अगर प्राइमरी 2 साल के बाद होती है तो सेकेंडरी 3 साल के बाद होती है. राइट. उसके बाद सेकेंडरी में ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट आपने कब कराना है? मेरा ख्याल है 2 साल के बाद करा लो, एक्सेप्ट के पेशेंट के हस्बैंड कहीं बाहर चला जाना है, पेशेंट को खुद से बहुत जल्दी है, पेशेंट हरसेल्फ वांट्स टू गेट इन्वेस्टिगेटेड एटलीस्ट के, क्योंकि फिर ट्यूबल पेटेंसी में इसमें तो खैर देयर इज अ सिस्ट के साथ ऊपर से एक HSG भी करना थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी. तो आप हो सकता है, वैसे मुझे इस पेशेंट के अंदर मैं तो एक OHSS का भी डायग्नोसिस रखूंगी. ठीक है. तो अगर आपको ना आप उसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस एक्सपेक्ट कर रहे हो, ना आप उसके अंदर, ना उसके हस्बैंड ने कहीं चले जाना है, अभी 1 साल से वो ट्राई कर रहे हैं, लास्ट चाइल्ड बॉर्न उनका अभी 2 साल का है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो देखो अगर 4 साल शादी को हुए हैं, 3 साल पहले उसका एक बेबी हुआ है, 2 साल वो फीड कराती रही है, और 1 साल से वो ट्राई कर रही है, एंड देन आस्किंग हर टू गो फॉर द ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, it doesn't sound good. ओके मैम, अगर ये ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस का ही केस होता और
और पेशेंट जो है वो वाकई 2 to 3 ईयर से कर रही होती, तो भी उसमें भी अभी इस वक्त तो फिर ट्यूबल पेटेंसी के लिए ना करते ना, पहले तो उसके मास को ट्रीट करते और फिर हम लोग उसकी ट्यूबल पेटेंसी चेक करेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल लेटर ठीक है। अच्छा, किसी ने कहा सीटी स्कैन, सीटी स्कैन इसमें नहीं होगा। देखो सीटी स्कैन आपको पता होना चाहिए सीटी की क्या वैल्यू, सीटी कब कराना है और आपने एमआरआई कब कराना है। सीटी सिर्फ तब कराया जाता है जब आपने स्प्रेड ऑफ डिजीज देखनी हो, यानी कि अगर उसको मेलिग्नेंसी है तो स्प्रेड ऑफ मेलिग्नेंसी ऑन द सरफेस ऑफ अदर ऑर्गन्स देखनी हो, राइट। उसमें हम सीटी कराते हैं, जैसे सी ओवरी में, सी ओवरी की स्टेजिंग के लिए या एक्सटेंट ऑफ द डिजीज देखने के लिए। एमआरआई हम कराते हैं सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंट देखने के लिए, जैसे अगर एंडोमेट्रियम हो गया तो उसकी एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल इन्वेजन देखने के लिए कि कितनी इन्वेजन मायोमेट्रियम में कहाँ तक गया हुआ है, तो हम एमआरआई करा लेते हैं एंडोमेट्रियम में। इसी तरह मैंने आपको बताया है कि जैसे फिस्टुला का ट्रैक देखना है या वो डायग्नोस करना है, किसी ने अच्छा हुआ मेंशन कर दिया यहाँ पे, ताकि हमने थोड़ा सा ये भी देख लिया कि अगर किसी में फिस्टुला एक्सपेक्ट करो, जैसे कि आई एम श्योर, देखो जिन लोगों ने वो केस देखा है ना, दैट्स सच एन अनयूजुअल केस एंड आई एम सो ग्लैड इट वाज डायग्नोस्ड करेक्टली। जिन्होंने वो केस देखा है उनका वाकई में ध्यान नेचुरली हर डिस्चार्ज में जाएगा फिस्टुला की तरफ। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपने अगर कुछ ऐसा हो तो कब फिस्टुला सस्पेक्ट करना है, और अगर आप सस्पेक्ट कर ही रहे हो तो उसको आपने डायग्नोस कैसे करना है, राइट। तो ये दो तरीके होंगे, या एमआरआई और उसका एएफपी का सैंपल, या फिर उसका ईयूए। ईयूए इज अ वेरी गुड वे टू डायग्नोस फिस्टुला, राइट। सो एमआरआई फिर आप उसमें कराओगे। इस पेशेंट के अंदर किसी ने कहा सीटी कराएंगे या नहीं कराएंगे, इसमें तो नहीं कराएंगे ना, क्योंकि आप स्प्रेड ऑफ द डिजीज, इसमें कोई मेलिग्नेंसी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स मैस होता, जैसे कि ट्यूबोवेरियन एब्सेस का या ओवेरियन मैस की डिस्क्रिप्शन दी होती है अल्ट्रासाउंड पे, तो आपने ट्यूमर मार्कर्स मांगे, उन्होंने आपको ट्यूमर मार्कर्स नहीं दिए फॉर एग्जांपल, सिर्फ कॉम्प्लेक्स मैस अल्ट्रासाउंड पे दिए, तो आप सीटी अभी भी नहीं कराओगे। आप कहोगे मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग एंड माय ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट। अगर ट्यूमर मार्कर्स आपको ज्यादा देते हैं तो फिर आप सीटी करा लोगे टू सी द स्प्रेड ऑफ द मेलिग्नेंसी, ठीक है। आई होप कि सीटी वाली बात क्लियर हो गई। इस पेशेंट के डीडी में तो यार देखो, इस पेशेंट के डीडी में आप सिंपल ओवेरियन सिस्ट नंबर 1, नंबर 2 ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, नंबर 3 क्योंकि शी इज at the 20th day of her cycle also, so OHSS is a very good DD अगर आप उसको भी सोचो। नंबर 3 urinary symptoms for the pain lower abdomen, ठीक है। ये आपका वैसे OHSS का लग रहा है फ्रैंकली, क्योंकि पेन और सिस्ट तो तभी OHSS के साथ ही होती है, ठीक है। चलो कोई जल्दी से बताए, मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर लो, फिर हम वापस मदिया के पास आएंगे। या डिस्चार्ज जो है ना, किसी ने क्या व्हाट अबाउट डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज है ना, कोई हर डिस्चार्ज देखो 90% of the discharge patients that you see in your OPD have got the lower genital tract infection, like maybe bacterial vaginosis, maybe candidiasis, चलो ज्यादा ही हो तो ट्राइकोमोनाइसिस हो जाता है, बहुत ही रेयर क्लेमिडिया एंड बट गोनोरिया। द थिंग इज कि आप उस डिस्चार्ज को उसी तरह ही लेके चलो। डिस्चार्ज पे मैंने एक दफा क्लास ली थी, डिस्चार्ज पे पूरी अलग क्लास भी लेंगे, बल्कि ट्यूबोवेरियन एब्सेस पे अभी हमने ट्यूबोवेरियन मैस अच्छा टॉपिक पकड़ा है, इसके हम सारे डीडीज कर लेंगे। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। इसमें जो है ना बुरा परफॉर्म करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो मेरा ख्याल है इसी की कंटिन्यूएशन में हम अगली 2-3 क्लासेस भी रख लेते हैं, ताकि आपको कोई उसमें रह ही ना जाए कि जी मैम, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ट्यूबोवेरियन एब्सेस का, और फिर उसमें ट्यूबल पेटेंसी कैसे बिल्कुल। देखेंगे। और मैम इसकी साइज का भी बहुत होता है कि ये तो 5 सेंटीमीटर की है, चलो अगर तो ये मैं एब्सेस बोल होती, रही हूँ हाँ, मैम अगर एब्सेस होती तो हम इनसी डायरेक्ट ड्रेनेज अभी ही हम उसको सिंपल कर करते। रहे हैं, अगले में एब्सेस करेंगे, ठीक है। एब्सेस और वर्सेस मेलिग्नेंसी अगली क्लास में, ट्यूबोवेरियन एब्सेस वर्सेस मेलिग्नेंसी। मुझे कोई ग्रुप में खुद ही वॉलंटियर कर लेना कि किसने आना है नेक्स्ट टाइम, ताकि सबको वो भी मिल जाए मौका। जी इमरान। जी मैम इसके ना डिफरेंट हम लोग सिनेरियो बना लेंगे ना मैम, ओवेरियन मैस बना लो, जी बना या के सिर्फ 1 लाइन सिनेरियोस बना के ना आप ग्रुप में ही शेयर कर दो मिलके, सारे 4-5 बन जाएंगे, और ये हम 2 क्लासेस में अगली कवर कर लेंगे 4-5 सिनेरियोस।
ठीक है ना, दिस अ वेरी हम्म। गुड आइडिया। इसकी सिंपल सिस्ट 5 सेंटीमीटर 30-year-old सेकेंडरी सबफर्टिलिटी, इसकी कोई अच्छी सी मैनेजमेंट बोल दे, बुरी सी बोल दो, मान जाऊंगी। मैम सिंपल सिस्ट है तो सिस्टेक्टोमी कर दें। चलो, क्या करनी है? मैम सिस्ट रिमूवल कर दें और क्या, सर्जरी से सिस्टेक्टोमी कर दें, कर सिंपल सी देनी है, सिस्ट है। पता चले रिमूवल के दौरान की ये तो OHSS का केस है। मैम वो आपने बोल लिया मरीज, OHSS की ओवरी को सिर्फ टच करके देखो किसी दिन, पेशेंट ends up in oophorectomy। सही। OHSS की ओवरी इसमें तो को अगर आप टिपिकली कर रहे हो and you by mistake touch even your simple non-traumatic grasper to that ovary, it starts bleeding and it's uncontrollable और वो oophorectomy हो जाती है। सॉरी, मैं 1 मिनट लेबर रूम से, कोई मैनेजमेंट जल्दी से सोच लो, मैं अभी आप लोगों से सुनती हूँ। हेलो, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही इसकी मैनेजमेंट। हेलो डॉक्टर इमराना, हेलो। जी जी हेलो। हाँ, आप जो अभी मैम से कह रही थी ना कि हम कुछ सिनेरियोज बना लें, तो मैं वही चीज आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस के और मास के ना कुछ सिनेरियोज बना लें, ताकि हमें उसकी डिफरेंट साइजेस पे और फिर पता चल सके कि उसकी मैनेजमेंट क्या अच्छा होगी। देखो, मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, फिर जिसने वॉलंटियर करके अपनी प्रैक्टिस करनी हो बेशक बोल ले। देखो, दिस पेशेंट आप उसी तरह जैसे मदीहा ने स्टार्ट किया था कि आई विल काउंसल माय कपल, एक्चुअली मदीहा ने मैनेजमेंट बहुत अच्छी बोलना शुरू की थी। एक्सक्यूज मी, मदीहा थोड़े से आपके ना बस कॉन्सेप्ट और टू द पॉइंट बोल। ये प्रॉब्लम होती है स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों को, जो क्रॉनिक हो जाते हैं ना, उनको तो समझ आ जाती है कि एग्जाम में चाहिए क्या। ये प्रॉब्लम होती है ट्रेनिंग के एंड पे कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि हाउ टू कन्वे एंड यू नो कि टारगेटेड बोलना कैसे। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है ट्रेनिंग के एंड पे, वरना आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, यू आर वेरी क्लियर, आप कॉन्फिडेंट भी हो, आपका स्टार्ट बहुत अच्छा होता है चीजों का, जैसे यू स्टार्टेड दैट आई विल काउंसिल पेशेंट एंड और आई विल काउंसिल द कपल, कि दिस इज द प्रॉब्लम, यू विल से दैट आई विल फर्स्ट काउंसिल द पेशेंट about subfertility that they are married, they have been trying for 1 year only. 1 year. Yes, or the patient is young, etc., etc. Considering her pain, there is finding in ultrasound which is the simple ovarian cyst. Pain is either because of some complication, but this cyst is not complicated as shown in the ultrasound, right? So I have ruled out other causes for pain, which is UTI. तो अगर UTI है तो I will give her treatment, this treatment for UTI, ठीक है, एंड ऑल्सो द मस्कुलर पेन, कुछ साथ पेन किलर भी ऐड कर देंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी। Then considering the cyst, she is having 5 centimeter cyst. I have inquired about the ovulation induction if she has been taking. अव्वल तो आपका केस है OHSS का, इसका वाइवा आसान नहीं होगा, ठीक है ना। आजकल IVF बहुत कॉमन हो रहा है, people are giving lots of ovulation inductions, और कई दफा सही ओवुलेशन इंडक्शन में भी OHSS हो जाता है। So पर you मैम come इस across पेशेंट ने ना ऐसी कोई भी हिस्ट्री दी नहीं, तब भी मैंने उसे पूछा कि कोई ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली ली। गूगल पे इतना कुछ आ गया हुआ है कि फीमेल्स जो हैं वो विदाउट खुद डॉक्टर करती हैं। एडवाइस भी ओके। ओवुलेशन इंडक्शन लेती हैं, एंड दे कम टू आवर क्लिनिक्स विद, सो नेवर फॉरगेट द डायग्नोसिस ऑफ OHSS। इसीलिए कई दफा ट्रिपलेट्स और क्वाड्रुपलेट्स के साथ भी पेशेंट आ रही होती हैं कंसीव करके, क्योंकि वो खुद, आई हैव सीन अ पेशेंट conceived with 7 embryos, घर बैठ के तीसरे महीने से गूगल पे देख के खुद से ओवुलेशन इंडक्शन लेके पहले ही महीने में कंसीव करके 7 एम्ब्रियोज के साथ आ गई, राइट। सो ये गूगल ने बहुत मसला किया हुआ है पढ़े लिखे स्पेशल लोगों में। सो ये चीज कभी रूल आउट करनी नहीं भूलनी के OHSS। अगर आप के पेशेंट ने नहीं भी हिस्ट्री दी तो आप बेशक अपने DD में बोल दो, तो बहुत इम्प्रेस होगा एग्जामिनर, because she has not given me any history of ovulation induction, so she is having only 5 centimeter cyst according to guideline। कोई guideline बताए मुझे, RCOG गाइडलाइन फॉर प्री मेनोपॉजल या मेंस्ट्रुएटिंग लेडी में, यंग लेडी में 5 सेंटीमीटर सिंपल सिस्ट में RCOG गाइडलाइन क्या कहती है? RCOG गाइडलाइन तो कहती है कुछ करो ही ना, कुछ करो ही ना जी मैम, सिर्फ फॉलो करो। वो तो कहते हैं 7 सेंटीमीटर्स पे फॉलो करो उसे। फॉलो अप है मैडम। नहीं मैडम, 1 ईयर के बाद इसका स्कैन करवाएंगे ना। एग्जैक्टली ना, हम 1 ईयर के बाद नहीं कराएंगे, चलो हम 6 महीने बाद ही करा लेंगे, क्योंकि उसको पेन भी है।
right? Hmm. Or you can Hmm. call her back after 3 months because she wants to conceive also. आप cyst को नजर में रखना चाहोगे. अगर तो ये unmarried होती, 18 years old with 5 centimeter cyst, चलो फिर 6 महीने बाद करा लेते. This patient wants to conceive also. There is a 5 centimeter cyst. You can call her back after 3 months and get her ultrasound done again, और फिर आप उसको follow कर सकते हो. और year तक अगर वो persist करती है तो फिर आपको intervention decide कर सकते हो. वैसे तो ये बातें उन्होंने 7 सेंटीमीटर्स पे लिखी हुई है. लेस देन 5 सेंटीमीटर पे तो उन्होंने कहा है नॉट, दे डोंट इवन नीड एनी फॉलो अप. ऐसा ही है ना? जी मैम. बी रूल वाली पेशेंट है, यंग पेशेंट है, तो 5 सेंटीमीटर लेस देन 5 सेंटीमीटर पे है वैसे तो शी इज 5 सेंटीमीटर, तो चलो हम 5 सेंटीमीटर बिल्कुल मार्जिन पे. फॉलो अप हाँ. रखेंगे. 5 to 7 पे उन्होंने फॉलो अप रखा हुआ है कि 6 month to 1 year का फॉलो अप करें इन अ यंग पेशेंट. इसमें मैं 3 months पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शी वांट्स टू कंसीव आल्सो एंड यू मे नीड टू गिव हर ओवुलेशन इंडक्शन एटसेट्रा. तो इस पेशेंट के अंदर तो आप उसको 3 months के बाद बुला लो. लेकिन 6 months उन्होंने किया हुआ है कि 5 to 7 सेंटीमीटर में 6 months तक करो. If the size is same, take her to 1 year. अगर 1 year तक ये persist करती है तो फिर intervention करोगे. अगर ये 6 months में decrease होना शुरू हो जाती है then that is okay, फिर तो ठीक होगी. और वैसे अगर आप कभी इस चीज को असल में भी practice करके देखो तो ये cyst वाकई सर्जरी वाली नहीं होती. हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं बिकॉज दैट पेशेंट गेट्स वेरी कॉन्शियस. वो बार बार आ जाते हैं, स्पेशली ये जो व्हेन यू विल बी डूइंग योर प्राइवेट क्लिनिक एंड देयर इज अ 5 सेंटीमीटर सिस्ट इन अ डॉटर, एक अनमैरिड लड़की में है, और आप उन्हें 5 सेंटीमीटर्स पे कहते हो कि ओके कम टू मी आफ्टर 6 months. वो कहते हैं 3 महीने बाद दिख रहा आएंगे और फिर परसिस्ट करी होगी. आप उन्हें रीअश्योर, वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि दे से कि नहीं वी वांट टू गेट समथिंग डन अबाउट इट. लेकिन अगर आप उसको जनरली गाइडलाइन के मुताबिक लेके चलो तो 5 सेंटीमीटर सिंपल सिस्ट इन अ पेशेंट does go away in 6 months time or 1 year time. However, if it is less than 5 centimeter, you really don't need to do any intervention. ठीक है. सो इट्स बेटर टू गो विद द गाइडलाइंस. आप कैसे इस पेशेंट में शी वांट्स टू कंसीव आल्सो, आपको हो सकता है 3 महीने बाद या कभी आप उसको ओवुलेशन इंडक्शन दे रहे हो, यू कैन कॉल हर बैक आफ्टर 3 months एंड देन रीअसेस. और बाद में उसे यही बताओगे कि 5 to 7 सेंटीमीटर, अगर सिस्ट मोर देन 7 सेंटीमीटर हो यंग पेशेंट में, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, देन आप उसको इंटरवीन कर सकते हो. या फिर वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो भी उसकी मैनेजमेंट अलग है. गाइडलाइन बहुत अच्छी आरसीओजी की, प्रीमेनोपॉजल और पोस्टमेनोपॉजल में ओवेरियन सिस्ट की. और बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि आप चाहे पूरी ना भी करो, जस्ट डू द B&M रूल्स एंड दिस बेसिक गाइडलाइन कि 5 सेंटीमीटर लेस देन 5 सेंटीमीटर में क्या करना है, 5 to 7 में क्या करना है, मोर देन 7 सेंटीमीटर में क्या करना है, और कॉम्प्लेक्स सिस्ट इन प्रीमेनोपॉजल में क्या करना है. और जो पोस्टमेनोपॉजल है उसमें तो बहुत ही खूबसूरत फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसके अंदर गाइडलाइन के अंदर अबाउट ओवेरियन सिस्ट के इफ इट इज मोर देन 1 centimeter. They say it's more if it is more than 1 centimeter. 1 centimeter is very, very small, but in a postmenopausal lady, if it is more than 1 centimeter, go ahead with the detailed TBS CA125 and then CA125 इन दो चीजों से आप RMI निकालोगे और फिर RMI के मुताबिक जबरदस्त डिसाइड के अंदर तो उन्होंने ये भी कहा है कि RMI अगर लेस देन 200 है और उसकी सिंपल 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है और बिल्कुल सिंपल सिस्ट है एंड देयर इज नो अदर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन विद दैट सिस्ट, तो जस्ट उसका 4 to 6 मंथली फॉलो अप करो. अगर उसके बाद भी वो परसिस्ट करती है फिर 4 to 6 मंथली फॉलो अप करो और फिर लेकिन उसके बाद भी परसिस्ट करती है तो इंटरवेंशन करो. सो 1 साल तक तो हम उसमें कुछ कर ही नहीं रहे अगर वो 5 सेंटीमीटर से कम सिंपल सिस्ट है विद लेस देन 200 RMI इन अ पोस्टमेनोपॉजल लेडी. लेकिन अगर उसका साइज मोर देन 1 सेंटीमीटर है, RMI बेशक लो लेस देन 200 है, बट इट्स नॉट अ सिंपल सिस्ट ऑन अल्ट्रासाउंड, देन गो अहेड विद the surgery or any intervention. और if the risk RMI अगर 200 से ज्यादा है तो फिर तो वैसी इंटरवेंशन बन जाएगी, वो तो फिर आप उसका CT कराओगे, उसका ऑन्कोलॉजी की टीम बैठाओगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So this is the flow chart of the postmenopausal lady. इस पेशेंट में this was a very good case. उसकी वजह ये है कि हम डिस्कस करते रहते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट प्रीमेनोपॉजल में बड़ी सिस्ट लाने में. This is a 5 centimeter cyst. Go with the guideline. It's always better. और guideline ये भी कहती है कि there is no role of any combined contraceptive pills in ovarian cyst in a young girl. So you just need to observe. इस पेशेंट के अंदर आपको UTI मिलेगा, आप
खुद ही से बिग एग्जामिनर को कहोगे यूरिनरी कॉज है, मैं they have been trying for 1 year only, young couple है, they're living together, they got one daughter already who's already 3 years old, they have been trying for 1 year now, और फिर मैं इनको फर्टिलिटी डेज के बारे में बता के उन्हें भेजूंगी, और हस्बैंड का चलो रिपोर्ट हुई भी है, करा लिए, बाकी रिपोर्टें होगी हार्मोनल पेशेंट की, सो आई विल काउंसिल हर अबाउट द फर्टिलिटी डेज के, वो जाकर अवेल करे, मीनवाइल मैं सिस्ट को फॉलो कर लूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पेशेंट में लेके चलेंगे। आई होप समझ आ गया सबको। यस मैम। क्विकली मैम जल्दी से ये गाइडलाइन, और गाइडलाइन की इतनी ही बातें फिलहाल के लिए काफी हैं। हाँ, बी रूल याद कर लो, एम रूल याद करो, आरएमआई याद कर लो, अल्ट्रासाउंड की क्या फाइंडिंग्स आ रहे हैं, हमें 013 स्कोर के लिए चाहिए वो याद कर लो, मेनोपॉजल का 103 स्कोर क्या है, और CA125। सो ये 2-4 चीजें याद कर लो, और किसमें आपने कौन सी टीम को मिलाना है थोड़ा सा वो भी याद कर लो, और किसमें कितना इंसिडेंस है गोइंग टुवर्ड्स मेलिग्नेंसी। अगर आरएमआई लेस देन फॉर एग्जांपल 25 है तो कितना रिस्क है, 25 से 250 है तो कितना रिस्क है, मोर देन 250 है तो कितना रिस्क है, ये चीजें, बिकॉज if you say these things, you use incidences, you use the values and the एक mathematical बातें जब करोगे ना एग्जाम में तो बहुत वैल्यू बढ़ जाती है बात की, ठीक है। जी मैम नेक्स्ट प्लीज ट्यूबोवेरियन एब्सेस पे कोई केस मतलब कोई हाँ, ले ले तो इस ट्यूबोवेरियन पे तो एब्सेस बिल्कुल दो कॉम्प्लेक्स केसेस पे कर ट्यूबोवेरियन लें। एब्सेस वर्सेस मैलिग्नेंसी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। किसी ने ये सारी मैनेजमेंट खूबसूरत सी बना के बोलने की कोई प्रैक्टिस भी करनी है तो वॉलंटियर कर ले, मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बात कर रही हूँ सिर्फ, बट आई होप कि मैनेजमेंट क्लियर हो गया। प्लीज कोई क्वेश्चन कर लो अगर नहीं क्लियर हुई। हो गई मैम, हो गई, थैंक यू। सिंपल, आज हमने सिंपल सिस्ट की है। जी मैम। किसी ने कोई सवाल करना है तो पूछ ले। Ma'am, simple cyst in adolescents, simple cyst in premenopausal, menstruating creatine, simple cyst in postmenopausal, इन सब में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो एडोलेसेंट होती है उसमें एडोलेसेंस का 3 अलग है, टॉग आर्टिकल है उसका, मैम बिल्कुल वो उसका अलग है। बहुत लाइक अच्छा अगर टॉग उसमें आर्टिकल। जी बिल्कुल, अगर 3 से 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है उससे हम 3 मंथली फॉलो पे बुलाते हैं, लेकिन अगर यही सिस्ट हमारे पास बिल्कुल उसमें होती है तो हम उसको कहते हैं जिस फॉलो अप की जरूरत नहीं है। अगर हमारे बिल्कुल पास 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है तो वो डिपेंड करता है पेशेंट आपकी सिम्टोमेटिक है एसिम्टोमेटिक है। अगर वो वेरी एसिम्टोमेटिक आप 3 मंथ्स बाद थैंक वापस यू, बुला लेते हैं। थैंक यू अफशा मेंशन करने का, वेरी गुड। आई थिंक ये 3-4 फ्लो चार्ट्स हैं, ये आई विल सी आज ही मैं आप लोगों को एक दफा शेयर भी कर दूंगी, ताकि अगर टाइम नहीं है अलग अलग गाइडलाइन या टॉक आर्टिकल देखने का, सिर्फ ये कर लो। वैसे एडोलेसेंस का लेकिन आजकल जो पैटर्न एग्जाम का है उसमें वो भी आ सकता है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर मेंशनिंग। 2-3 आज देखो कितने अच्छे केसेस, कोमल ने हमें इतना इंटरेस्टिंग केस बताया, अफशान ने पॉइंट्स बड़े अच्छे ऐड किए हैं, जीरा हिला ने कुछ कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने पूछना है कि इसी केस के अंदर जैसे 5 सेंटीमीटर सिंपल सिस्ट हमें मिला और मैम हमें पेन की कोई कॉज नहीं मिलती, अगर लेट्स सपोज जैसे आप कह रही हैं यूटीआई वगैरह नहीं, लेकिन शी इज सिम्टोमेटिक, तो उस केस में तो फिर हमने इसको एग्जामिनर को बताना है कि हमने सिस्टेक्टमी करनी है। अच्छा देखो, नहीं उसमें आपने ये कहना है कि पेन विद अ सिस्ट का मतलब है कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ सिस्ट। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ सिस्ट क्या है? 4 कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, या तो उसका रप्चर हो गया, या उसका टॉर्जन हो गया, या हेमरेज या इन्फेक्शन। टॉक लाइक दिस विद एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इफ द पेन इज नॉट सेटलिंग इवन आफ्टर यूटीआई ट्रीटमेंट, देन यू विल से दैट if in my DD I had this in mind that she's having pain, so she may be having a complicated ovarian cyst, which may be a ruptured cyst, hemorrhagic cyst, infection वाली cyst, और torsion, cyst with a torsion, ठीक है। अब ये जो चारों चीजें है ना रहीला, इन सब की एक हिस्ट्री होती है और एक एग्जामिनेशन होता है। पेशेंट who is having a torsion will never go back home to take antibiotics for UTI. उसकी तो जो पेन होती है वो हम सबने देखी हुई है, ठीक, उसमें फिर शायद आप यूटीआई के ट्रीटमेंट को डीडी में लाते ही नहीं हो। पेशेंट डज नॉट इवन सिट ऑन बेड, पेशेंट हु इज हैविंग टॉर्जन एंड पेन हैज गॉट स्वेट्स ऑन फोरहेड, उसको कोई पेन किलर ही नहीं असर करता। आप उसे ट्रिमॉल लगाओगे, उसको नेल्बिन भी दोगे, वो 2 घंटे के बाद फिर वही चीखें मारेगी जो वो पहले मारी थी। अ पेशेंट हु इज हैविंग रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट also does not go back home, और मतलब आप उसको 2 घंटे के लिए भी कहीं नहीं भेज सकते हो, she will collapse, right? There are some clinical findings. Then a patient who's having hemorrhagic cyst, यानी कि bleeding वाली cyst, वो तो वैसे collapse हो जाएगी पेशेंट, और इन्फेक्शन तो ट्यूबोवेरियन एब्सेस है। सो
ये सारी चीजें उसकी हिस्ट्री और पेन के पैटर्न से ही डायग्नोज हो जाएगा। और देन इन अल्ट्रासाउंड अ पेशेंट इज हैविंग टॉर्जन इज shown on ultrasound। अगर उसकी कोई गैंग्रीनस चेंजेस आ रही हैं तो इट विल नॉट बी दैट सिंपल सिस्ट जैसी हमें अल्ट्रासाउंड पे बताई। So complication of an ovarian cyst is not just a diagnosis made on pain, on a simple pain that type of pain जो 6 महीने से, ठीक है। Complicated ovarian cyst की जो pain है that has to be acute except for the abscess। लेकिन again abscess के भी कुछ features हैं। जी हाला ने कुछ कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वो मेरे साथ एक पेशेंट आई थी, तो मैम हर एज वाज लाइक अराउंड 40 और वो पैरा 3 थी, लेकिन वो आई थी कि मुझे मतलब सिस्ट बताया गया है और जब उसका स्कैन किया गया तो उस पे टॉर्शन नहीं थी, लेकिन उसको एक फेंटिंग एपिसोड भी हो चुका था। वो कहती कि मतलब मैं वॉशरूम में गिर गई, मतलब मुझे कितना सिवियर पेन था। लेकिन फिर जब मैंने उसका स्कैन कराया तो उसमें टॉर्शन नहीं था। और फिर मैंने जब उसको मतलब पेन किलर वगैरह दिए तो उसके बाद वो 1 वीक तक मतलब स्टेबल रही ना। जब उसका सिस्ट देखा तो इट वाज लाइक 5 सेंटीमीटर। फिर इसको किस तरह फिर आगे फॉलो अप करें हाँ, उसका? उसका फिर टॉर्जन इंट्राऑपरेटिवली। तो मैम टॉर्शन नहीं था ना स्कैन पे, तो फिर क्या निकला उसका? तो मैम उसके बाद वो ये इस वीक जब आई हाँ थी तो देखो, मैम अब ये पेशेंट है, पेशेंट हु इज सेइंग टू यू कि इतनी फेंट हुई कि इतनी पेन हुई कि वो फेंट हो गई, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पेन। हाला ने ठीक कहा, एट टाइम्स पेशेंट डज गिव दिस टाइप ऑफ हिस्ट्री, एट टाइम्स पेशेंट को वाकई इतनी पेन होती है। देखो, दीज आर फ्यू रेयर केसेस जिसमें यू कैन एंड अप इन नेगेटिव लेप्रोस्कोपी आल्सो। और फिर फ्रैंकली एक क्रॉनिक पेल्विक पेन भी तो होती है ना, उसके अंदर भी तो आपको डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इंडिकेटेड होती है। सो देयर आर फ्यू वेरी लेस केसेस व्हिच आर कंफ्यूजिंग इन द डायग्नोसिस, व्हिच आर मिसलीडिंग। जैसे हाला ने कहा कि इसको 1 हफ्ता में हमने एंटीबायोटिक्स दी या नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कम्स, अब देखो टॉर्जन वाले को आप घर भी तो नहीं भेज सकते ना, उसको गैंग्रीन ना बन के आ जाए, उसका वेरियन टिश्यू सारा डैमेज हो जाएगा। सो पेशेंट हु इज सेइंग कि इतनी सेवियर पेन है और यू आर कीपिंग हर इन द हॉस्पिटल फॉर 4 आवर्स और 6 आवर्स जस्ट टू कीप हर एन ऑब्जर्वेशन के, लेकिन वो भी 4-6 आवर्स में आप डायग्नोस कर लेते हो उसको सोने के पैटर्न से, या आप उसके के मतलब हाउ इज शी बिहेविंग ड्यूरिंग पेन। तो लेकिन स्कैन पे भी अगर टॉर्जन नहीं आई तो देन यू कैन सेंड हर होम एंड यू कैन जस्ट रिकॉल आफ्टर 3 days कि क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन देयर आर फ्यू केसेस जिसमें बहुत सिवियर पेन है, इवन आप 4 to 6 hours रखा है, पेशेंट फेंटिंग अटैक का भी जिक्र कर रही है, देन देयर इज नो हार्म इन पुटिंग इन अ स्कोप जस्ट टू हैव अ लुक, क्योंकि मैम अगर छोड़ देने इसका में फिर से नुकसान इस ज्यादा भी हो सकता है। जी मैम हाला। अगर इसका इस तरह का फिर से फेंटिंग अटैक आ जाए तो फिर लाइक इसकी लेप्रोस्कोपी कर लें, मतलब 5 सेंटीमीटर का सिंपल सिस्ट था। कर ली, बिल्कुल कर ली। देखो Thank you. डायग्नोस्टिक फिर तो देयर आर फ्यू इंडिकेशन, क्रॉनिक पेल्विक पेन में डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होती है, इसके अंदर आप कह रहे हो, लेकिन यू हैव टू रूल आउट ऑल द अदर कॉज ऑफ पेन एंड देन यू फाइंड अ फाइंडिंग इन अल्ट्रासाउंड एंड द सिम्टम्स आर सो एग्रेसिव कि शी इज हैविंग फेंटिंग अटैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यू कैन नॉट एट टाइम्स इस किस्म के पेशेंट में टॉर्जन निकल भी आती है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में, जिसमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं हुई होती पिक। हर चीज की सेंसिटिविटी 100% तो है नहीं, लेकिन डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी तो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड। सो देयर आर फ्यू मैम केसेस एक और क्वेश्चन मुझे भी याद है, उस पे हेमरेजिक सिस्ट भी लिखा था ना, तो लाइक हेमरेजिक सिस्ट में इस तरह का पैटर्न होता फिर है? आप और कॉन्शियस हो जाते हो कि फेंटिंग अटैक हो रहा है, तो पता नहीं बीपी लो हो जाता है उसका, ठीक है ना। सो गुड, आई थिंक वी हैव कवर्ड अ गुड टॉपिक टुडे। नेक्स्ट में जैसे अभी इमराना ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि मेक फ्यू लिटिल 4-5, आप बेशक सिनेरियोस ना बनाओ, सिर्फ टॉपिक्स अगर बना लो कि ओवेरियन मास विद मैलिग्नेंसी इन प्रीमेनोपॉजल, इन पोस्टमेनोपॉजल, एंड देन उसके अलावा मैम नेक्स्ट पे हाँ जी मैम नेक्स्ट पे ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस ही रखते हैं एब्सेस फिर। वर्सेस हाँ मैलिग्नेंसी, दिस अ वेरी गुड टॉपिक। ओके मैम, वो तो डीडी में आ जाएगा उसकी कोई में। अब आपकी तो होगी बारी, अब कोई और वॉलंटियर करेगा ताकि सबको मौका जी जी मिले। मैम, जी जी मैम, सब अंजलि ने करें कुछ कहना है। जी लेकिन अंजलि। टॉपिक इसी पे रखें कोई तो। परफेक्ट, गुड। जी बिल्कुल मदिया। जी अंजलि। ओवेरियन सिस्ट विद प्रेगनेंसी। यस, ओवेरियन सिस्ट इन प्रेगनेंसी, लेकिन वो मुश्किल नहीं आती, वो भी कर लेंगे साथ ही कल, इसमें नेक्स्ट क्लास में वो आसान कर है, इसमें 4-5 बातें हैं ओवेरियन हाँ सिस्ट चल में। इमराना बता दो जल्दी से, कुछ क्लास एंड करें। ओवेरियन सिस्ट इन मैम प्रेगनेंसी के 4-5 मेरा ये है कि मैलिग्नेंसी इन यंग पेशेंट।
हाँ, यंग पेशेंट, वो तो हम अगली दफा कर रहे हैं ना ट्यूबोवेरियन एब्सेस के साथ। प्रेगनेंसी का अगर किसी ने क्विकली कवर करना है, वरना वो भी हम नेक्स्ट में कर लेंगे, होता वो भी मुश्किल नहीं है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, साइज के अकॉर्डिंगली आप उसको लेके चलते हो, और फिर वही इफ यू आर प्लानिंग सर्जरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्यूमर बोर्ड पूरा बिठा के करते हैं, वो हम सारा डिस्कस भी कर लेंगे डिटेल में, ठीक है। सो आई थिंक अब मैं एंड कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ट्यूबोवेरियन एब्सेस वर्सेस मैलिग्नेंसी, और Yes, ma'am. Thank you. प्रेगनेंसी वाला, ठीक है। Okay. तो ये वॉलंटियर फिर ग्रुप में कर दे, फिर हम कर लेंगे इंशाल्लाह। मैम थैंक यू, जज़ाक वेलकम।